Hello everyone, this is CA Nikita Somani. I am here with the very new video of RTP November 2020. In this video, I'll be solving all the theory questions and also questions related to accounting standards. So in this video, I'm solving those questions. So niche from 15 to 20 questions, all those are related to theory or accounting standards. So question number 15. Question number 15 it says, with regard to the financial statements, name any four. अच्छा, users. कौन कौन users होते हैं financial statements के? The users are investors, employees, है ना? Investors, employees, lenders, customers, गवर्नमेंट एक्सेट्रा और भी लिख सकते हो. देर इन्होंने यहाँ पर बोला है नेम एनी फोर. सो आई हैव रिटन इन्वेस्टर्स, एम्प्लॉयज, लेंडर्स, कस्टमर्स, गवर्नमेंट. तो लेंडर्स के लिए क्या है ये कि हाँ हम रीपे कर देंगे तो ओके हम भी पैसे आपको लेंड कर देंगे. इन्वेस्टर्स के लिए इफ आई इन्वेस्ट इन सम कंपनी आई मेक श्योर दैट दैट कंपनी इज वेल टू डू. एंड देन गवर्नमेंट के लिए क्या? फाइंड द टैक्स लाइबिलिटी, डिफरेंट टैक्स लाइबिलिटीज दैट इज जीएसटी, इनकम टैक्स वगैरह वगैरह. देन व्हाट आर द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स? क्या है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? अंडरस्टैंडेबिलिटी, रेलिवेंस, रिलायबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी. What? Understandability, relevance, reliability and comparability. Understand, it should be understandable to ज्यादा लोगों को अंडरस्टैंड करना चाहिए. लार्जर सर्कल ऑफ पीपल को यह चीज अंडरस्टैंड होनी चाहिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या लिखा है. रेलिवेंस, it should contain all the relevant information and not anything which is not relevant to the company. Reliability, if I read those financial statements, then I should make sure that okay, this information whatever is given in the financial statement is very much reliable. Investors invest करेंगे, lenders पैसे देंगे, तो there should be some reliability in this financial statements. And that what? Comparability किससे करेंगे? Comparability between the two financial years, है ना? Previous year and current financial years में क्या क्या differences है. And दूसरा, to compare it with the similar line of business. कोई और अगर similar line of business कर रहा है तो उसके business से हमारा business compare करने के लिए this comparability. Okay, so understandability, relevance, reliability and comparability. What are the एलिमेंट्स? एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के? एलिमेंट्स आर एसेट्स, लाइबिलिटीज, इक्विटी, इनकम, एक्सपेंडिचर, है ना? ये सारे एलिमेंट्स ही होते हैं ना. क्या क्या चीजें हम डिस्कस करते हैं अकाउंट्स में? एसेट्स कितनी है, लाइबिलिटीज कितनी है, इनकम कितना है, गेन कितना है, एक्सपेंडिचर कितना है, इक्विटी. ऑल दिस थिंग्स आर व्हाट? एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. व्हाट आर द इश्यूज विथ विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डील? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डील विथ three issues. What are these three issues? Those three issues are recognition, then what? Measurement. Recognition, measurement and presentation. Recognition, measurement and presentation. These three are the issues with which accounting standard deals. So for what it deals? Events and transactions. And these events and transactions should be meaningful and understandable. These all the issues should be meaningful and understandable to the users. So what? Three things: recognition, measurement, presentation. ऐसा क्वेश्चन आया तो this is very simple to answer. Next question is related to accounting standard 1. Disclosure of accounting policies. क्या है? Simple question is what are the three
Fundamental accounting assumption recognized by accounting standard. Briefly describe each. Question number 15. It says users कौन-कौन है? Investors, employees, lenders, suppliers, customers, government and public. ठीक है? This is the answer of users. Then qualitative characteristics: understandability, relevance, comparability, reliability and faithful representation. These are the qualitative characteristics. Elements क्या-क्या है? Elements are asset, liability, equity, income, gain, expenditure or loss. Accounting standard deals with the issues of what? It says recognition, measurement, presentation of what? Events and transactions of financial statement which will be meaningful. It will be meaningful and understandable to the reader. Then question number 16, we saw about the three fundamental accounting assumptions. What are the three fundamental accounting assumptions? गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड एक्रूअल बेसिस. सिंपल है ये तो बचपन से पढ़ाया जाता है ना. इवन इन 11th 12th में भी ये सारा कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया है. व्हाट आर द थ्री फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस? दोज आर गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, एक्रूअल बेसिस. गोइंग कंसर्न में क्या डिस्कस किया जाता है? गोइंग कंसर्न में दीज आर नॉर्मली प्रिपेयर्ड ऑन द अजम्पशन दैट एंटरप्राइज विल कंटिन्यू इट्स ऑपरेशंस इन द फॉरसीएबल फ्यूचर. मतलब ये मान के चलते हैं कि ये गोइंग कंसर्न जो है ये कंपनी फॉलो करने वाली है. दीज अकाउंटिंग ये अजम्पशंस बुक्स में तब रिप्रेजेंट करते जब ये फॉलो नहीं होते हैं. अगर ऐसा कभी है कि अब ये कंपनी इज नॉट गोइंग टू फॉलो दिस गोइंग कंसर्न अजम्पशन, फिर इनको बुक्स में लिखना पड़ेगा ओके वी आर नॉट गोइंग टू फॉलो दिस गोइंग कंसर्न अजम्पशन, कंपनी इज गोइंग टू शट डाउन. वरना ये अज्यूम किया जाता है कि कंपनी इज गोइंग टू कंटिन्यू. और क्या बोलते हैं? नाइदर देयर इज अ इंटेंशन नॉर देयर इज अ नीड टू मटेरियली curtail the scale of operations. Next, consistency. The principle of consistency refers to the practice of using same accounting policies. What? Same accounting policies for similar transactions in all the accounting periods unless the change is required. देखो ये बोलते हैं कि कंसिस्टेंसी मीन्स सिमिलर टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस है तो हम सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो करेंगे until and unless there is any change required by statute, by accounting standards or for more appropriate presentation of financial statements. Accrual basis of accounting. Accrual basis में क्या बोलते हैं? Whether cash received or not, whether income received or not, whether cash paid or not, हम ये सारा transactions record कर देंगे. देखो यहाँ पर बोलते हैं वो whether or not cash or cash equivalent is actually received or paid. ये एक्चुअली रिसीव्ड और पेड हुआ हो या ना हुआ हो, एक्रूअल प्रिंसिपल से as soon as they occur. This word is important. As soon as they occur, it is to be recognized in the books of accounts, whether the income is received or not, or whether the expense is paid or not. That is the accrual basis. Next question is related to accounting standard 2, that is valuation of inventories. Measurement of inventories कैसे करते हैं? Inventories should be valued at lower of cost or NRV. This is written in accounting standard para 5. Question number B says A Limited is engaged in manufacturing of chemical Y for which raw material X is required. The company provides you following information for the year ended 31st March 2020. Information is given about raw material X and chemical Y. Additional information they provide. Total fixed overhead for the year was 4 lakh और normal capacity of 25,000. Fixed overhead हम निकाल सकते हैं 4 lakh divided by 25,000 units. That comes to rupees 16 per unit. यहाँ पर देखो सारा पर यूनिट इंफॉर्मेशन दिया हुआ है. दैट्स वाई मैंने फिक्स्ड ओवरहेड का भी पर यूनिट एक्सपेंस निकाल लिया. देन इट सेज क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रॉ मटेरियल एक्स इज 1000 यूनिट्स एंड केमिकल वाई वाज 2400 यूनिट्स. You are required to calculate the total value of closing stock of raw material X and chemical Y according to AS2 when NRV value of chemical Y is 600 per unit. देखो सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है. All these three information is given. Material consumed, direct labor, variable overhead और यहाँ पर fixed
ओवरहेड का हमने निकाल लिया 16 पर यूनिट। सो टोटल करना पड़ेगा 440 प्लस 120 प्लस 80 प्लस 16, दैट कम्स टू 656। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द कॉस्ट, दिस इज द कॉस्ट। और यहां पर जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, एनआरवी। सो 600 इज एनआरवी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या बोलता है, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, तो दैट कम्स टू 600। तो इसका वैल्यूएशन कैसे करेंगे हम, 600 पे। केमिकल Y 600 was NRV and 656 was cost, whichever is lower। तो हमने क्या लिया वहां पर, 600 NRV। What does it say in para 24? In case of raw material, देखो materials and other supplies held in use in the production of inventories। तो अभी क्या बोलते हैं वहां पर वो, there is a sentence given, however when there has been a decline in the price of materials, यहाँ पर decline हो गया ना NRV, and it is estimated that the cost of finished products will exceed the NRV, cost of finished products will exceed the NRV। देखो cost यहां पर ज्यादा है NRV से, cost is more than NRV। हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज अगर 100 की है तो we sell it at 120, 130, 150 more, तो NRV हमेशा ज्यादा होनी चाहिए, बट यहाँ पर NRV कम है, NRV is less। तो क्या बोलते हैं कि जो रॉ मटेरियल उसमें यूज होता है, the materials are written down to NRV, materials are written down to NRV। in such circumstances the replacement cost of the materials may be the best available measure for their NRV। क्या बोलते हैं वो, रिप्लेसमेंट कॉस्ट। अगर ऐसा होता है कि जो फाइनल प्रोडक्ट है वो आपका एनआरवी पे आप उसको मेजर कर रहे हैं, आप उसका बेसिस जो है अगर एनआरवी ले रहे हैं, तो जो रॉ मटेरियल यूज होगा उसका बेसिस आप क्या लो तो बेटर होगा, रिप्लेसमेंट कॉस्ट। लेट्स सी इफ दैट इंफॉर्मेशन इज गिवन हियर। ये देखो यहाँ पर रिप्लेसमेंट कॉस्ट दिया हुआ है, कॉस्ट भी दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस इज 400, रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज 320। तो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पैरा 24 हम ये वाला यूज करेंगे, प्राइस 320, क्योंकि जो फाइनल प्रोडक्ट है उसको हमने एनआरवी पर कॉस्ट किया है एंड एनआरवी इज लोअर, तो हम रॉ मटेरियल का कौन सा प्राइस यूज करेंगे, रिप्लेसमेंट कॉस्ट। अभी अभी हमने कॉन्सेप्ट में भी वो पढ़ा। क्या बोलते हैं वो यहाँ पर, एनआरवी ऑफ केमिकल वाई, एनआरवी ऑफ केमिकल वाई इज हाउ मच, ₹600 पर यूनिट, विच इज लेस देन कॉस्ट। कॉस्ट आ गया ना हमारा, ये देखो यहाँ पर भी इन्होंने ये कॉस्ट निकाला है 656। ओके, सारा कॉस्ट निकाला है, कितना है कॉस्ट, इतना, और एनआरवी 600। तो कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, and hence the raw material is to be valued at replacement cost and finished goods are to be valued at NRV since the NRV is less than cost। we have seen this concept। okay, तो closing quantity कितना दिया हुआ है, 1000 and 2400। तो देखो यहाँ पर भी उन्होंने ये रेट्स यूज किए 320 एंड 600, अकॉर्डिंग टू दैट ये वाला वैल्यूएशन आया है। दिस इज द टोटल वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। सो इंपॉर्टेंट क्या था इसमें, एक वो पैरा 5 एंड पैरा 24, पैरा 5 एंड पैरा 24 एंड दिस फिक्स्ड ओवरहेड एक निकालना था, दैट्स इट, द अदर थिंग्स वेर इजी। नेक्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। वहां पर वो क्या बोलते हैं, ओमेगा लिमिटेड कॉन्ट्रैक्टेड विद द सप्लाई टू परचेज मशीनरी which is to be installed in its one department in 3 months time, in 3 months time, this is important। special foundations were required for the machinery which were to be prepared within the supply lead time। the cost of the site preparation, cost of site preparation and laying foundation is 1,40,000। देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ऐसा बोला गया है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में, कि सारे एक्सपेंसेस जो भी एक मशीनरी को पूरा पुट टू यूज करने तक जो भी खर्चा होगा वो सारा, वो हम क्या करेंगे, मशीनरी या जो भी हमने एसेट खरीदा है उसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। सो दिस इज ऑल्सो द, ये क्या एक्सपेंस है, साइट प्रिपरेशन एंड लेइंग फाउंडेशन इंपॉर्टेंट है, पुट टू यूज करने के लिए ऐड करेंगे, this will be added। These activities were supervised by a technician during the entire period who is employed for this purpose,
दिस लाइन इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस पर्पज, दैट मीन असेट पुट टू यूज के लिए इस टेक्नीशियन को वहां पर एम्प्लॉय किया गया है, एंड दैट कॉस्ट इज हाउ मच 45,000 पर मंथ, और उसका एंड द टाइम गिवन इन द क्वेश्चन इज 3 months टाइम, तो into 3, so into 3 that comes to 1,35,000. next the machine was purchased as 1,58 lakh, ये तो बाय डिफॉल्ट है कि ये ऐड होगा ही, and then there is 50,000 transportation charges were incurred to bring the machine to the factory site, factory site तक लाने के लिए ये खर्चा हुआ है, so this will be also added. An architect was appointed at a fee of 30,000 to supervise the machinery installation at the factory site. सारा का सारा खर्चा जो भी है it is related to the machinery, so all these things will be added. So the answer it says cost of machinery, क्या क्या आएगा, purchase price given, site preparation cost ये भी given, ये देखो ऐड किया है, यहाँ पर सब कुछ ऐड किया है, टेक्नीशियन सैलरी फॉर 3 months ये भी हमने ऐड किया, देन उसके बाद में इनिशियल डिलीवरी कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन एंड आर्किटेक्ट फीस ये भी यहाँ पर ऐड किया, एंड द वैल्यू कम्स टू 1,61,55,000. दिस इज द कॉस्ट ऑफ द मशीनरी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू AS11, इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स. मॉनेटरी आइटम्स किसको बोलेंगे, मॉनेटरी आइटम्स, मॉनेटरी आइटम्स उसको बोलेंगे, items are money held na as per AS11, so money held and assets and liabilities to be received or paid in fixed and determinable अमाउंट्स, है ना, क्या क्या है एग्जाम्पल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स, डिपॉजिट्स ऑफ बैंक, कैश एक्सेट्रा, ऑल दिस थिंग्स आर कॉल्ड मॉनेटरी आइटम्स एज पर AS11. एंड नॉन मॉनेटरी आइटम्स क्या क्या रहेंगे, आपका शेयर कैपिटल हो गया, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स, ये सारा क्या हो गया, नॉन मॉनेटरी आइटम्स. तो यहाँ पर बोलते हैं, यहाँ पर उन्होंने बोला है क्लासिफाई द फॉलोइंग आइटम्स एज पर मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी आइटम. तो शेयर कैपिटल क्या है, नॉन मॉनेटरी, ट्रेड रिसीवेबल्स मॉनेटरी, इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विटी शेयर्स नॉन मॉनेटरी, फिक्स्ड एसेट्स नॉन मॉनेटरी. क्वेश्चन नंबर B, इट सेज गुड्स परचेज्ड ऑन 1/1/19 फॉर $15,000. गुड्स परचेज्ड मतलब ये क्रेडिटर्स होंगे, दीज आर क्रेडिटर्स, हमको इनको पे करना है. देखो दिस इज वेरी सिंपल, इफ यू आर पेइंग समबडी, किसी को हम पे करते हैं, सपोज से 100 पे करना है, एंड दैट पर्सन सेज नो प्रॉब्लम, पे मी ओनली 90. वेरी गुड, ग्रेट, ओके, वो बोलता है जाने दे यार, तेरे लिए एक स्पेशल डिस्काउंट, प्लीज पे 80, और खुश है ना, दैट वे. सो एक्सचेंज रेट, यहाँ पर क्या बोलते हैं, एक्सचेंज रेट ऑन 31/3/2019 इज हाउ मच, 74. अभी ये जो क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स दीज आर मॉनेटरी आइटम है ये, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, और ये जो फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस होते हैं इनको क्या करना पड़ते हैं, दीज आर रिकॉर्डेड बाय अप्लाइंग द एक्सचेंज रेट्स ऑन डेट ऑफ ट्रांजैक्शंस. देखो डिफरेंट डेज, एक्सचेंज रेट ऑन ईयर एंड 31/3/2019 क्या है, 74. ट्रीटमेंट होगा इसका भी, एंड एक्चुअल पेमेंट डेट कब है, 7/7/2019 नेक्स्ट ईयर. वहां पर रेट और भी कम हो गया, मतलब ये देखो 75 पे करना था, फिर वो कम हो गया 74, एंड देन जब एक्चुअल पेमेंट किया तो तब रेट क्या हो गया 73. तो आपको पे कितना करना है, सिर्फ 15,000 इंटू 73. खरीदा कितने में था, 15,000 इंटू 75. सो लेट्स सी इसका इफेक्ट क्या रहेगा.
It says, as per AS11, the effects of changes in the foreign exchange rates, all foreign currency transactions should be recorded by applying exchange rate as on the date of transaction. Thus, the goods purchased on 1/1/19, देखो purchase किया था 75 में, so cost कितना हो गया 11,25,000. Then, according to the standards, at the balance sheet date, all the monetary transactions should be reported by using the closing rate क्या दिया हुआ था उस दिन 74. तो देखो ऐसा रिकॉर्ड किया है 15,000 इंटू 74. प्रॉफिट कितने का हो गया 75 माइनस 74, 1 रुपीज प्रॉफिट. सो का कितना प्रॉफिट हो गया फिर 15,000. ट्रांसफर दिस टू P&L अकाउंट. तो देखो यहां पर उन्होंने क्या किया है, दिस शुड बी क्रेडिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन द ईयर 1819. ठीक है. नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में पेमेंट किया है, पेमेंट किया तब रेट क्या था 73. नाउ यू आर पेइंग दिस मच, है ना, आप इतना पे कर रहे हो, यू आर पेइंग दिस मच 10,95,000 और फिर से आपको 1 रुपए का यहाँ पर प्रॉफिट हो गया. इतना पे करने, ऐसा ईयर एंड पे इतना आया. अभी तो पे और भी कम करना है और प्रॉफिट 15,000 का, है ना. 74 माइनस 73, अगेन 1 रुपी का प्रॉफिट. सो दैट कम्स टू $15,000 into 1 rupees 15,000. अगेन 15,000 का प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट करो. दिस अमाउंट माइनस ये 15,000 into 73. So that will be credited to the profit and loss account in the year 1920. 1920 में पेमेंट किया है. अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 1 में. इट सेज ₹35 lakhs received from local authority for providing medical facilities to the employees. This is the revenue grant. कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड करेंगे इसको. ठीक है, क्रेडिटेड टू P&L अकाउंट. नेक्स्ट बोलता है वो 100 lakhs received as subsidy from central government for setting up a unit in backward area, for setting up a unit in backward area. और 100 lakhs देखो कितना ह्यूज अमाउंट है. इसको क्या बोलेंगे, ग्रांट इन द नेचर ऑफ प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन. Question number 19, it says 35 lakhs received from the local authority for providing medical facilities to the employees is the grant received in the nature of revenue grant, and such grants are generally presented as credit side of profit and loss account. एक revenue grant receive हुआ है, इसको credit कर देंगे P&L में, या फिर इसको हम other income में डाल देंगे, अदर इनकम में शो करेंगे, और जैसे जैसे हर साल खर्चा होता जाएगा वैसे वैसे इसको डेफर करते जाएंगे. दैट इज एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस. किसके लिए दिया है उन्होंने ये, दीज आर रिसीव्ड फॉर प्रोवाइडिंग मेडिकल फैसिलिटीज टू द एम्प्लॉयज. ठीक है, तो दिस कैन बी कंसिडर्ड एज एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस ऑल्सो. तो दो वेज है, एक तो डायरेक्टली P&L में डाल दो, दूसरा इसको अदर इनकम में बता सकते हो, और देन स्लोली जैसे जैसे खर्चा होगा वैसे वैसे आप इसको एक्सपेंस आउट कर सकते हो. Next, it says question number 2 में, as per AS12, accounting for government grants, where the grants are in the nature of promoters contribution, that is they are given with reference to total investment in undertaking. बोला है ना, क्या बोला है उन्होंने यहाँ पर in the given case the subsidy received from the central government is for setting up a unit in a notified backward area, है ना. ये क्या है, नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया के लिए इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनको ग्रांट प्रोवाइड किया है. अभी दिस इज नॉट इन रिलेशन टू स्पेसिफिक असेट, है ना, कोई स्पेसिफिक असेट के लिए नहीं है, ना कोई रेवेन्यू के लिए, जैसे ऊपर उन्होंने बोल दिया था एम्प्लॉय बेनिफिट्स के लिए. ये कोई असेट भी नहीं बोला है, कोई असेट का नाम नहीं लिया है. दिस इज फॉर सेटिंग अप अ यूनिट इन बैकवर्ड एरिया, ये कॉन्ट्रीब्यूशन है उनका. तो दिस इज एज गुड एज कैपिटल. इसीलिए इन्होंने यहाँ पर बोला भी क्या है, दिस इज ट्रीटेड एज कैपिटल रिजर्व. और एक चीज डिस्कस की है इन्होंने, ये बोलते हैं दिस कैन नाइदर बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड नॉर कंसिडर्ड एज डेफर्ड इनकम. ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये पूरा का पूरा जो अमाउंट है दिस विल बी कंसिडर्ड एज प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन. ऐसा माना जाएगा कि ये प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन है.
कैपिटल रिजर्व में जाएगा. दिस विल नीदर बी अवेलेबल फॉर डिविडेंड पेमेंट or not be considered to be a deferred income. This is a capital receipt from the government, from the central government. तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? कैपिटल रिजर्व में जाएगा ये. AS 13 accounting for investments. A Limited on 1/1/20 had made an investment of 600 lakhs in an equity shares of B Limited, of which 50% is made in long term category. 50% is long term category and the rest as temporary investments. देखो दो चीजें हुई हैं यहां पर. 600 long term temporary, long term and temporary. So 50% है, 50%, so 300 and 300. As per AS 13 में क्या बोला है कि जो टेम्पररी होता है ना वो हमेशा किस पे वैल्यू होता है? कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर. अभी ये कॉस्ट है, 300 इज कॉस्ट. फेयर वैल्यू देखते हैं. लॉन्ग टर्म को किस पर वैल्यू किया जाता है? कॉस्ट पर उसका एक एक्सेप्शन है. देयर इज एन एक्सेप्शन. What is that exception? If there is other than temporary fall or decline, है ना. यूजुअली तो उसको कॉस्ट पर ही रिकॉर्ड करेंगे, बट अदर देन टेम्पररी मतलब अगर कोई परमानेंट डिक्लाइन है तो उसको किस पर रिकॉर्ड करेंगे? फिर जो भी फेयर वैल्यू अभी चल रहा है उस पर रिकॉर्ड करेंगे. ओके. So now they say that आगे बोलते हैं realizable value of all such investments on 31st/3/2020 became 200 lakhs as B Limited lost a case of copyright. It lost a case of copyright. How will you recognize the reduction in the value of the investment in the financial statements for the year ended 31st March 2020? And वहां पर बोल के रखा है as per AS 13, considering this downfall in the value of share is non-temporary. That is, this is other than temporary. This is other than temporary. So this is 100. This is 100. Fair value is how much? 100. तो इसका आंसर यहाँ पर क्या आएगा? 100. So there ये जो डिफरेंस है 300 minus 100, this 200 will be gone to profit and loss account. टेम्परेरी की बात हो रही है यहाँ पर. कॉस्ट इज 300, फेयर वैल्यू इज 100. तो हम रिकॉर्ड करेंगे ये वाला जो भी इन्वेस्टमेंट है एट द रेट ऑफ ₹100 एंड दूसरा जो 200 रुपीज है वो कहा जाएगा? मेरा P&L में जाएगा, है ना, क्योंकि वो लॉस हो गया. एंड देन लॉन्ग टर्म असेट में इट सेज दैट अदर देन टेम्परेरी अगर है, अदर देन टेम्परेरी डिक्लाइन है, और ये यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल दिया था दिस इज अदर देन टेम्परेरी. तो यहाँ पर हम लोग किस पर वैल्यू करेंगे? ऐसे तो कॉस्ट पर करते हैं, बट यहाँ पर अदर देन टेम्परेरी रीजन है तो इसका भी किस वैल्यू पर रिकॉर्ड करेंगे? 100 पर. तो देयर इज अ डाउनफॉल ऑफ अगेन 300 minus 100 दैट इज 200. इस 200 को भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफर करेंगे. एज पर AS 13, it says accounting for investment, the carrying amount for current investments is lower of cost or fair value. ये हमने भी देखा है ना, 300 और 100 whichever is lower. तो उस पर रिकॉर्ड करेंगे. The market value generally provides the best evidence for fair value. Accordingly, the carrying value of the investment held as temporary investment should be shown as realizable value at ₹100 lakhs. ये हमने भी किया. And the reduction of 200 lakhs in the carrying amount of current investments should be charged to profit and loss account. Standard further states that long-term investments are usually carried at cost. है ना? Usually तो उसको किस पर रिकॉर्ड करते हैं? कॉस्ट पर. But however, when there is a decline other than temporary in the value of long term investment, the carrying amount is reduced to recognize the decline. है ना? उसको भी हम किस पे रिकॉर्ड करेंगे? फिर 100 पे ही.
बिकॉज क्वेश्चन में ही उन्होंने बोल दिया था दैट केस इज अदर देन टेम्परेरी। उसमें बोला है देखो, B Limited has lost the case of copyright which drastically reduced to realizable value of a share to 1/3, which is quite substantial figure. Then losing the case of copyright may affect the business and the performance of the company in long run. Accordingly, it is appropriate to reduce the carrying amount of the long-term investment by 200. Reduce the carrying amount of the investment by 200 and show the investment as 100 lakhs. हमने भी वही किया, 100 lakhs पे बताया है ना. As the downfall in the value of the shares is not temporary. It is not temporary. That is other than temporary. The reduction of 200 in the carrying value of the long-term investment will be charged to profit and loss account. Will be charged to profit and loss account. So this is the solving of question number 19. Last question is related to accounting standard 16, that is borrowing cost. Question number 20. Last question है ये, that is accounting standard का. It says Vittal Limited borrowed an amount of 150 crore on 1/4/2019 for construction of boiler plant at 10% per annum. The plant is expected to be completed in 4 years. Since the weighted average cost of capital is 13% per annum, the accountant of Vittal Limited capitalized 19.50 crores for the accounting period ending 31st/3/2020. Due to the surplus fund out of 150 crore, an income of 1.5 crore was earned and credited to profit and loss account. Comment on the above treatment of accountant with reference to the relevant accounting standards. What is the scenario in A? एक बॉयलर परचेज किया है 150 करोड़ का एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, उसका बोरोइंग कॉस्ट है, एंड दिस इज द क्वालिफाइंग एसेट. क्वालिफाइंग एसेट, क्वालिफाइंग एसेट किसको बोलते हैं? जिसको एक सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है पूरा रेडी होने में, और यहाँ पर बोला इट विल टेक 4 years. तो सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम है एंड दिस इज अ क्वालिफाइंग एसेट. तो उस क्वालिफाइड एसेट के लिए रेडी होने में ओके इट विल टेक 4 years. तो अभी उनको क्या करना है? कैपिटलाइज करना है. ये जो 10% है 150 crore into 10%, that comes to how much? 15 crore. This 15 crores will be capitalized into this 150 crore. और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या बोलता है? amounts of borrowing costs are eligible to capitalize on that asset should be determined on actual borrowing cost incurred less any income on temporary investment. और यहाँ पर क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला है? देयर इज अ इनकम भी हुआ है, तो एक काम करेंगे, ये जो इनकम हुआ है 1.5 करोड़ का, ये 15 करोड़ से लेस कर देंगे, एंड द रिमेनिंग अमाउंट दैट इज 13.50 crore, this amount will be capitalized. 13.50 will be capitalized. Now the treatment given by the Vittal Limited, क्या ट्रीटमेंट किया है उन्होंने कर दिया क्रेडिट टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड दे आर सेइंग टू कमेंट डाउन ऑन द ट्रीटमेंट. अबाउट ट्रीटमेंट, लेट्स सी दिस इनटू द आंसर. उसका ट्रीटमेंट देखो कुछ इस तरीके से होगा, है ना? एक्चुअल इंटरेस्ट लेस एनी इनकम अर्न, और जो बचा हुआ अमाउंट है दिस 13.5 करोड़, दिस अमाउंट विल बी कैपिटलाइज्ड. पर विट्ठल लिमिटेड ने क्या किया है? जो 1.50 करोड़ का जो इनकम था वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफर किया. इज दैट ट्रीटमेंट करेक्ट? इट सेज hence in the above case the treatment of accountant of Vittal Limited is incorrect. वो उसको P&L में नहीं डाल सकते, उसका ट्रीटमेंट ऐसे ही दिखाना पड़ेगा to reduce that from the actual interest. The amount of borrowing cost capitalized in the financial year 1920 should be calculated as follows. इस तरीके से उसको कैलकुलेट करके दिखाएंगे. So the treatment given by the Vittal Limited is not correct. और यहाँ पर उन्होंने बोला है सारा
क्वालिफाइंग असेट क्या होती है, उसके बाद कॉस्ट आर एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन एंड शुड बी डिटरमाइंड एज द एक्चुअल बोरोइंग कॉस्ट इनकर्ड। और उन्होंने क्या बोला है, लेस एनी इनकम ऑन टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट ऑफ दिस बोरोइंग। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, है ना। एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन, लेस एनी इनकम ऑफ टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट ऑफ दोज बोरोइंग, सो दैट इज दिस ट्रीटमेंट। और बोला है कि बस hence in the above case the treatment of Vittal Limited is incorrect. Next question, it says when the capitalization of borrowing cost will cease as per accounting standard 16, explain in brief. अच्छा, अब बोलते हैं कि इसका कैपिटलाइजेशन जो है, ये जो हमने 13.5 करोड़ ये कैपिटलाइज किया है, अभी अगर और फर्दर कुछ बोरोइंग कॉस्ट होगा तो इसको कब सीज कर देंगे। फॉर प्रिपेयरिंग दिस क्वालिफाइंग असेट्स फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल आर कंप्लीट। सारे एक्टिविटीज इसके खत्म हो गए, मतलब ये असेट पूरी रेडी है यूज होने के लिए, उसके बाद इसका जो भी बोरोइंग कॉस्ट का कैपिटलाइजेशन है इसको हम सीज कर देंगे। एंड द आंसर इट सेज कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट शुड सीज व्हेन सब्सटेंशियली ऑल द एक्टिविटीज necessary to prepare the qualifying asset for its intended use or sale are complete. An asset is normally ready for its intended use or sale when its physical construction or production is complete. है ना, उधर बोला था कि 4 years it will take, 4 साल के बाद asset is ready to use or ready to sell, तो वो खत्म हो गया, उसका कंस्ट्रक्शन खत्म हो गया। ऐसा मान लिया जाता है कि जब उसका फिजिकल कंस्ट्रक्शन खत्म हो गया है तो इट इज रेडी टू यूज और सेल। क्या है, सपोज देयर आर डिफरेंट पार्ट्स, है ना, मशीन का ये डिफरेंट पार्ट्स है। दिस सेपरेट, ये जो पार्ट है ये कंप्लीट हो गया, दिस पार्ट इज कंप्लीटेड, सो इट इज अज्यूम्ड दैट इफ द वर्क इज कंप्लीटेड इन पार्ट्स इन केपेबल ऑफ बीइंग यूज्ड व्हाइल द कंस्ट्रक्शन कंटिन्यूज फॉर अदर पार्ट्स, कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट इन रिलेशन टू द पार्ट शुड सीज। तो ये जो पार्ट है ना, दिस पार्ट, इसका अगर इसके रिलेटेड कुछ अगर बोरोइंग कॉस्ट है, इसके रिलेटेड अगर कुछ बोरोइंग कॉस्ट है तो दिस शैल सीज। सिर्फ इन 3 के लिए अब बोरोइंग कॉस्ट जो भी होगा वो कंटिन्यू होगा, एंड दिस फॉर वन असेट जो कंप्लीट हो गया है व्हिच इज रेडी फॉर यूज, इंटेंडेड रेडी फॉर यूज और सेल, देन इसका जो भी बोरोइंग कॉस्ट रहेगा इसको हम कैपिटलाइज नहीं करेंगे, क्योंकि ये सेपरेटली इसको हम पहचान सकते हैं कि दिस इज अ सेपरेट थिंग एंड दिस इज कंप्लीटेड। वही यहाँ पर बोला है इट इज कंप्लीटेड इन पार्ट एंड इज केपेबल ऑफ बीइंग यूज्ड व्हाइल द कंस्ट्रक्शन कंटिन्यूज फॉर अदर पार्ट्स, है ना। देन द कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट इन रिलेशन टू अ पार्ट शुड सीज व्हेन सब्सटेंशियली ऑल द एक्टिविटीज नेसेसरी टू प्रिपेयर दैट पार्ट फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल इज कंप्लीट। तब इसका जो भी बोरोइंग कॉस्ट का कैपिटलाइजेशन है दैट विल कम टू सीज। सो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ योर theory portion of RTP November 2020 CA Inter के लिए। So 15 to 20 questions are done. Earlier in the previous videos I have completed question number 1 to 10. 4 questions are remaining now, 11, 12, 13, 14. I will be solving those questions into my further videos. I believe that these videos are helpful to you. So I expect the genuine comments on this video if this video is really helpful for you. So that's it for today, guys. Thank you so much.